So, hey everyone, welcome back to my channel Legalize Hub. I'm Kanak Shukla, and this is the third video in the series of Law of Tort. So, in today's video, we are going to cover the topic nuisance. So, this is basically the table of contents, and these are the topics which we are going to cover in today's video. That is nuisance, types of nuisance, private nuisance with its important case law, public nuisance with its important case law, and can a private person file a case for public nuisance or exceptions of nuisance? So let's begin with the video. So the first topic is nuisance. So what is nuisance? So nuisance is basically derived from the French word nuire, which means to hurt or annoy. When someone hurts or annoys any other person, that will amount to nuisance. So basically nuisance किस वर्ड से derive हुआ है? एक फ्रेंच वर्ड है nuri, which means to hurt or annoy. जब हम किसी को hurt करते हैं या annoy करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूसेंस करते हैं. हम क्या कर रहे हैं? न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं उस पर्सन के साथ. So basically, nuisance as a tort refers to when plaintiffs use an enjoyment of his and her land or property is interfered with substantially and unreasonably through the actions of others. Nuisance as a tort क्या बोलता है कि जब प्लेंटिफ के इंजॉयमेंट और यूज ऑफ लैंड में डिफेंडेंट इंटरफेयर करता है जो कि एक सब्सटेंशियल होता है विच इज ग्रेटर इन नेचर और अनरीजनेबल दैट इज विदाउट एनी रीजन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूसेंस कहेंगे. In short, nuisance basically refers to when plaintiff's use and enjoyment is interfered substantially or unreasonably through the actions of the defendant or any other person. So that is the meaning of nuisance. As two definitions given by Winfield and Pollock, Winfield ने क्या बोला है? As per Winfield, nuisance as a tort means an unlawful interference with a person's enjoyment of land or some object having right over or in connection with it. विनफील्ड ने बोला है कि न्यूसेंस एज अ टॉर्ट ये होता है कि जब कोई अनलॉफुली दैट इज विच इज नॉट जस्टिफिएबल बाय लॉ इंटरफेयर करता है किसी भी पर्सन के इंजॉयमेंट ऑफ लैंड और किसी भी ऑब्जेक्ट जिससे उसका कनेक्शन हो तो वो क्या बोला जाएगा? न्यूसेंस बोला जाएगा. इन सिंपल वर्ड, न्यूसेंस एज अ टॉर्ट मींस अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्सन्स एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और एनी ऑब्जेक्ट हैविंग कनेक्शन और हैविंग राइट ओवर इट. But as per Pellock, he states that nuisance is a wrong done to a man by unlawfully disturbing him in the enjoyment of his land, property, or in some cases in the exercise of his or her common right. Pellock ने बोला है कि nuisance वो होता है कि जब कोई पर्सन किसी भी मैन के इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या लैंड में अनलॉफुली इंटरफेयर करता है या उसे डिस्टर्ब करता है या फिर इन द एक्सरसाइज ऑफ कॉमन राइट में भी अनलॉफुली उसे डिस्टर्ब करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूसेंस. So nuisance basically in simple words refers to unlawful interference in the enjoyment of land or property of someone by any other person substantially or unreasonably through the actions of that particular person. So I hope nuisance is clear to you all. So let's move forward. So basically, there are two types of nuisance, private nuisance and public nuisance. Public nuisance is covered under section 268 of Indian Penal Code 1860, but private nuisance is mentioned under law of tort. So let's discuss each one of them in briefly. Private nuisance. So the private nuisance refers to unlawful interference with person's enjoyment of land or some objects person having right over or in connection with it. तो हमने जैसे डिस्कस करा कि प्राइवेट न्यूसेंस वो होता है जब पर्सनली किसी पर्सन के इंजॉयमेंट ऑफ लैंड या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें उसकी राइट हो उससे कोई अनलॉफुली इंटरफेरेंस करता है या अनलॉफुली उस इंजॉयमेंट में इंटरफेरेंस करता है तो दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल फॉर प्राइवेट न्यूसेंस. सो प्राइवेट न्यूसेंस मीन्स अनलॉफुल इंटरफेरेंस with person's enjoyment of land or some object person having right over it in connection with it
substantially, or unreasonably. So basically, there are three essential elements of private nuisance. What does अगर हमें किसी को लाइबल करना है अंडर प्राइवेट न्यूसेंस, तो हमें ये थ्री एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए, तभी हम उस पर्सन को प्राइवेट न्यूसेंस के लिए लाइबल कर सकते हैं. So what are these three essential elements? Let's first, the plaintiff owns the land or has the right to possess their own property, which means जो plaintiff है उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए या तो उसका राइट होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई दो नेबर है ए एंड बी, तो ए बाहर गया हुआ होता है, बट जो एक सी पर्सन होता है जो ए का फ्रेंड होता है, तो वो उसके घर पे आकर के रुकता है. बट बी पर्सन जो होता है वो रात में बहुत तेज म्यूजिक चलाता है, जिसकी वजह से जो सी पर्सन है वो सो नहीं पाता है. तो यहाँ पे सी पर्सन बी पर्सन को लाइबल नहीं कर सकता या केस नहीं ला सकता, क्योंकि उसका राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी पे. ही वॉज नॉट द रियल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, सो ही कैन नॉट ब्रिंग सूट अगेंस्ट person B. But yeah, agar he is the real owner of that property and he possesses the rights over that property. Second क्या है? The defendant's action interfere with the plaintiff's enjoyment and use of their property rights. जो डिफेंडेंट के एक्शंस होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो कि इंटरफेरेंस क्रिएट करे प्लेंटिफ के एंजॉयमेंट और यूज ऑफ प्रॉपर्टी में. मतलब जो भी वो एक्शंस कर रहा हो वो ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ है उसका एंजॉयमेंट डिस्टर्ब हो और यूज ऑफ प्रॉपर्टी भी डिस्टर्ब हो. देन only we can make that person held liable for private nuisance. Third, the defendant interference was substantial and unreasonable. Substantial means continuous. Continuous हो या बहुत ही ज्यादा interference हो, so that is substantial. Unreasonable, that is not justifiable. Without any reason, if you are interfering in someone, that will lead to the private nuisance. तो यहाँ पे तीन एसेंशियल्स हमने क्या पढ़ा? पहला, that plaintiff must own the land and has the right to possess their own property. Second, the defendant's action interfere with the plaintiff's enjoyment and use of their property rights. Third, the defendant's interference was substantial and unreasonable. Plaintiff have to prove all the three elements for making the defendant liable for the tort of private nuisance. अगर हमें किसी को प्राइवेट न्यूसेंस के लिए लाइबल करना है तो हमें ये तीनों if I am the plaintiff and I am making someone held liable for the private nuisance, then I must have to prove that these three essential elements are fulfilling and that person is causing private nuisance to me. So that we have to prove. अब एक एग्जांपल लेते हैं. A and B are the neighbors. A used to do jamming practice at night, due to which B is unable to sleep because his flat is adjacent to A's flat. Now B brings a suit against A for private nuisance. So here, A will be liable for the private nuisance because his act of jamming is unlawfully interfering with B's enjoyment of land. तो मैं एग्जांपल दिया था फर्स्ट वाले एसेंशियल एलिमेंट्स में कि उसका फ्रेंड रह रहा था, बट यहाँ पे क्या केस है? ए और बी दो नेबर्स हैं और ए जो है वो जामिंग करता है रात में, जिसकी वजह से बी, जिसका फ्लैट जस्ट एडजेसेंट है ए के फ्लैट से, वो सो नहीं पाता रात में. तो यहाँ पे जो बी है वो क्या करता है? केस ले आता है ए के अगेंस्ट फॉर द प्राइवेट न्यूसेंस बिकॉज इस एक्ट ऑफ जैमिंग इज अनलॉफुली इंटरफेयरिंग इन बीज एंजॉयमेंट ऑफ लैंड. बिकॉज हमारे पास राइट है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करें, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर सर्टेन लिमिट्स दैट वी हैव टू फॉलो. वो हमें क्रॉस नहीं करनी होती, हमें ऐसे एंजॉयमेंट करनी है जिससे दूसरा पर्सन इफेक्ट ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए विल बी हेल्ड लायबल क्योंकि वो अनलॉफुली इंटरफेयर कर रहा है, बिकॉज जैमिंग practice at night is not justifiable. अब केस लॉ, एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसी से रिलेटेड, दैट इज हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स फार्म लिमिटेड वर्सेस एमेट 1963. so let's discuss this case. तो केस लॉ है हॉलीवुड सिल्वर फॉक्स फार्म लिमिटेड वर्सेस एमेट 1963 का केस है. केस फैक्ट्स क्या है? द प्लेंटिफ ब्रीड silver foxes for their fur. The foxes are by their nature of timid disposition and are easily scared, and when they are scared, they are liable to miscarry. The defendant was a farmer and animal rights activist who owned land adjoining to the fox farm.
He objected to carrying on the farm and deliberately encouraged his son to fire his gun in order specifically to frighten the foxes and impair their ability to breathe. He hoped he hoped that this would cause economic harm to the fox farm and cause them to end their operation. The foxes miscarried and the claimant an injunction to prevent this behavior. तो बेसिकली केस फैक्ट ये है कि जो प्लेंटिफ होता है वो सिल्वर फॉक्सेस को ब्रीड कर रहा होता है उनके फर के लिए। जो फॉक्सेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जो फॉक्सेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव नेचर के होते हैं क्योंकि वो स्केयर्ड, सो दे आर लायबल टू मिसकैरी, वो मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है, तो डिफेंडेंट क्या करता है, जो कि एक फार्मर और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट होता है, वो एक लैंड ओन करता है जो कि एडजॉइनिंग होता है फॉक्स फार्म के। उसका ऑब्जेक्ट ये था कि वो जो उसका ऑब्जेक्ट ये था कि जो ये प्लेंटिफ है जो कि फॉक्स ब्रीड करता है उसको हम तो ये ब्रीडिंग है उसको स्टॉप कर दे। ये अपने सन को इंकरेज करता है कि वो हवा में फायर करे जिसकी वजह से फॉक्सेस जो अपनी एबिलिटी टू ब्रीड है वो लूज कर दे। ठीक है, डर की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है कि उसने ये होप किया था कि जो इकोनॉमिक हार्म होगा वो फॉक्स फार्म के ओनर को होगा और वो अपना ऑपरेशन एंड कर देगा। तो अब क्या हुआ, उसने जो एक्शन किया उसकी वजह से फॉक्सेस मिसकैरी। तो जो क्लेमेंट होता है, जो ओनर होता है फॉक्स फार्म का, करता है प्राइवेट न्यूसेंस का केस लेकर के आता है फॉर पुटिंग द इंजंक्शन टू प्रिवेंट हिज बिहेवियर। अब यहाँ पे कोर्ट क्या जजमेंट देता है? So the court held that there was a nuisance and that when considering a nuisance for noise, the motive for the production of noise must be taken into consideration, whether or not he was using the land in a legitimate and reasonable manner. Citing a previous case, they held that no proprietor has an absolute right to create noises upon his own land because any right which the law gives him is qualified by the condition and that it must not be exercised to the nuisance of his neighbors, hence the injunction is granted. तो कोर्ट ये कहता है कि जब हम कोई भी न्यूसेंस का केस कंसीडर करते हैं तो हमें वहां पे मोटिव ऑफ नॉइज को भी कंसीडर करना चाहिए, मोटिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नॉइज को भी कंसीडर करना चाहिए। और यहाँ पे जो उसने हवा में फायर करा था दैट वाज डेलिबरेटली। और ये भी बोलता है कि जो वो लैंड यूज कर रहा था, जो फॉक्स फार्म का ओनर था जो लैंड यूज कर रहा था, वो एक लेजिटिमेट और रीजनेबल मैनर में कर रहा था। और उन्होंने ये भी बोला कि राइटर को एक एब्सोल्यूट राइट नहीं मिलती है नॉइज क्रिएट करने के लिए अपने लैंड पे, बिकॉज जो राइट्स हैं जो लॉ देता है वो भी क्वालिफाइड होती हैं बाय द कंडीशन, और वो भी इस वे में एक्सरसाइज नहीं करी जा सकती जिससे नेबर्स को न्यूसेंस हो, नेबर्स के लिए हम न्यूसेंस क्रिएट करें। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था और यहाँ पे ये जजमेंट देने के बाद उन्होंने इंजंक्शन ग्रांट कर दिया था और यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल कर दिया था फॉर द प्राइवेट न्यूसेंस। I hope this case law is clear to all my legal eyes. Let's move forward. So the second type of nuisance is public nuisance. From the word we can understand the meaning. Public means affecting at large. मतलब कोई भी न्यूसेंस जो क्रिएट कर रहे हैं वो जनरल पब्लिक को अफेक्ट कर रही है या पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रही है। So public nuisance basically refers to any act or conduct of an individual that interferes with the rights of public. कोई ऐसा एक्ट करना या कंडक्ट करना, किसी भी इंडिविजुअल ने ऐसा कोई एक्ट या कंडक्ट करा है जिसकी वजह से पब्लिक की राइट ब्रीच हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक न्यूसेंस हो जाएगा। Public nuisance occurs when a person commits an act that causes annoyance, injures, or threatens to injure the rights of general public. If someone commits any act that causes annoyance or injures someone or threatens to injure the public, the general public, or the rights of the general public, that will amount to public nuisance. Public nuisance is mentioned under section 268 of Indian Penal Code 1860. ये कहाँ मेंशन है? सेक्शन 268 में मेंशन है इंडियन पीनल कोड के। The person needs to show that the injury he faced was substantially greater than what the rest of public faced. अगर कोई प्राइवेट पर्सन
पब्लिक न्यूसेंस में ये दिखाना चाहता है कि वो अफेक्ट हुआ है, तो उसे ये शो करना चाहिए कि जो उसको इंजरी हुई है वो ग्रेटर नेचर की है, विच इज सब्सटेंशियली ग्रेटर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पब्लिक फेस। जो ऑफ द पब्लिक ने इंजरीज सफर करी हैं, वो उन इंजरीज से ग्रेटर नेचर की इंजरी उस पर्टिकुलर पर्सन ने अगर सफर करी है, तभी वो पब्लिक न्यूसेंस का केस ला सकता है और पब्लिक न्यूसेंस में अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है। The injury he faced must essentially have been direct, not merely consequential. जो इंजरी उसने फेस करी है उस पर्सन ने, वो डायरेक्ट होनी चाहिए, मतलब कोई भी अनॉयंस हुआ उसके डायरेक्ट इफेक्ट में वो इंजरी उसको हुई, ना कि किसी चेन ऑफ कॉजेशन की वजह से या फिर कोई चेन ऑफ इवेंट्स की वजह से या किसी और पर्सन की वजह से उसको हुई है, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता। अब एक एग्जांपल लेते हैं। पर्सन डी ब्लॉक्स पब्लिक एक्सेस टू द रोड by constructing a route to his house in the middle of it. As a result, person D's actions constitute public nuisance since they have an impact on the general public. अब कोई पर्सन डी है जिसने पब्लिक एक्सेस ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसने रोड के बीच में ही अपने घर का रास्ता बना लिया है, जो कि मिडल ऑफ द रोड है। और ये एक्शन क्या होगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूट करेगा ही पब्लिक न्यूसेंस, क्योंकि जो पासरबाइज होते हैं या नेबर्स होते हैं या नॉर्मल जनरल पब्लिक होती है, वो तो रोड को यूज करेगी, बट क्योंकि उसने उस रोड के मिड में अपना रूट बना लिया है, तो वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, हिंडर करेगा दूसरों को अपनी राइट को एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये क्या होगा, पब्लिक न्यूसेंस का केस हो जाएगा, बिकॉज एक्ट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द जनरल पब्लिक। पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रतलाम वर्सेस वर्दी चंद एंड अदर्स 1980। So let's briefly discuss this case. So case name Municipal Corporation Ratlam versus Vardi Chand and others in the year 1980. Case facts क्या है? Residents of Ratlam city in Madhya Pradesh faced issues due to pungent smell emanating from open drains. One major cause was the overflow of remains from the distilleries from the drains, which could create a health hazard for the public. Incidents of open defecation were also reported due to lack of toilets and presence of slums in the area. In the light of the given circumstances, the residents approached the executive magistrate to deal with the problem. Accordingly, the magistrate passed an order directing the municipality to chart out a planned program to remove the drain and construct proper ones along with toilets to avoid open defecation within 6 months' time. However, the municipality displayed inability to comply with the order due to lack of funds and the matter came before the court. इसके फैक्ट्स ये हैं कि जो रतलाम सिटी के रेसिडेंट्स थे, जो कि एक सिटी है मध्य प्रदेश में, वहां पे उन्होंने एक इशू फेस कर रहे थे पंजेंट स्मेल का, जो कि ओपन ड्रेन्स की वजह से आ रही थी, और जो डिस्टिलरीज थी वो ओवरफ्लो हो रही थी, जिसकी वजह से वो ड्रेनेज प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो इंसिडेंट था ओपन डेफिकेशन का, वो क्यों हो रहा था, क्योंकि लैक ऑफ टॉयलेट था और प्रेजेंस ऑफ स्लम्स था उन एरियाज में, और प्रेजेंस ऑफ स्लम्स था इन उन एरियाज में, क्योंकि ये जो ड्रेन वाली प्रॉब्लम थी वो हेल्थ हजार्ड क्रिएट कर रही थी पब्लिक के लिए। इन सारे सर्कमस्टेंसेस में रेसिडेंट्स ने डिसाइड करा और उन्होंने अप्रोच करा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को टू डील विद द प्रॉब्लम। जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने ऑर्डर पास करा, उन्होंने डायरेक्ट करा म्युनिसिपैलिटी को टू प्रिपेयर द प्लान प्रोग्राम टू रिमूव द ड्रेन, मतलब एक प्लान प्रोग्राम बनाने के लिए जिससे ये ड्रेन की प्रॉब्लम को रिमूव कर सके और एक प्रॉपर टॉयलेट क्रिएट कर सके, जिससे ओपन डेफिकेशन की भी प्रॉब्लम हम रिमूव कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स टाइम। उन्होंने 6 मंथ्स का टाइम दिया था, बट म्युनिसिपैलिटी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और एट द एंड उन्होंने ये दिखा दिया कि बिकॉज दे आर अनेबल टू परफॉर्म दीज गाइडलाइंस ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स एंड द मैटर केम बिफोर द कोर्ट। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ये जजमेंट डिलीवर किया था जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर म्युनिसिपैलिटी केस 1980 में। उन्होंने पब्लिक न्यूसेंस को इन्वायरमेंटल सेंस में रिव्यू करा था। उन्होंने एक न्यू लाइफ दी थी सेक्शन 133 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, जो कि एम्पावर करता है मैजिस्ट्रेट को टू अवॉइड पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने से और पब्लिक न्यूसेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। बट इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था रतलाम म्युनिसिपैलिटी का आर्ग्यूमेंट
कि जो उन्होंने बोला था कि इट कुड नॉट परफॉर्म द स्टैट्यूटरी ड्यूटीज ड्यू टू फाइनेंशियल इनेबिलिटी, और कोर्ट ने ये बोला था कि दिस इज नॉट द एक्सक्यूज, ये एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते, बिकॉज उन्होंने वो ऑर्डर करा था और ये कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं है कि फाइनेंशियल इनेबिलिटी की वजह से आप ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए। और कोर्ट ने ऑर्डर करा था म्युनिसिपैलिटी को कि वो सिविक फैसिलिटीज पब्लिक को प्रोवाइड करें विदाउट लेम एक्सक्यूजेस। और कोर्ट ने फर्दर ये स्टेट करा था कि जो प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल करा है या रेसिडेंट्स है, वो इंटाइटल होंगे कंपनसेशन के लिए अंडर सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी 1860। एज आई डिस्कस अर्लियर, मैंने बताया था कि जो पब्लिक न्यूसेंस है वो सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी में कवर होता है। तो बेसिकली कोर्ट जजमेंट ये आया था। अब एक क्वेश्चन होता है, बस एक क्वेश्चन आता है, कैन अ प्राइवेट पर्सन फाइल अ केस फॉर पब्लिक न्यूसेंस? So the answer is yes. A private person can file a case for public nuisance, but there are certain requirements which he and she has to fulfill. Like, so there are certain requirements which private person have to fulfill so that he and she can file a case for public nuisance. First, क्या है? The person needs to show that the injury he faced was substantially greater than what the rest of the public faced. मतलब कि जो उसे इंजरी हुई है वो जो रेस्ट ऑफ द पब्लिक को जो इंजरी हुई है उससे कई ज्यादा है, उसका नेचर कई ज्यादा है, उसको बहुत ज्यादा इंजरी हुई है एज कंपेयर टू द इंजरी फेस्ड बाय रेस्ट ऑफ द पब्लिक। और second point, what is the second point? The injury he faced must essentially have been direct, not merely consequential, and that injury must be substantiated. मतलब वो इंजरी जो होनी चाहिए वो डायरेक्ट होनी चाहिए, मतलब कोई इंसिडेंट हुआ है, पब्लिक न्यूसेंस उसने क्रिएट करा है, कोई एक्ट हुआ है, उससे डायरेक्टली वो पर्सन अफेक्ट होना चाहिए, ना कि ड्यू टू द चेन ऑफ पोजेशन वो होना चाहिए, या फिर किसी और के एक्ट की वजह से वो सफर होना चाहिए, या उसे वो इंजरी हो, या फिर किसी और के एक्ट की वजह से उसको वो इंजरी नहीं होनी चाहिए। वो जो होनी चाहिए इंजरी वो डायरेक्ट होनी चाहिए और वो सब्सटेंशिएट हो जानी चाहिए। ठीक है। अब केस लॉ, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट, प्राइवेट पर्सन फाइल अ केस फॉर पब्लिक न्यूसेंस। सो बेंजामिन वर्सेस स्टॉर्ट। So case facts and the plaintiff is having a coffee shop and the defendant carried on an extensive business as auctioneer in the same neighborhood, having an outlet at a near of premises adjoining to plaintiff's shop. Due to the continuous loading and unloading of the goods into and from vans and horses, the van intercepted the light from the plaintiff's shop to such an extent that he is obliged to burn gas nearly all day. Access to the shop also obstructed by the horses standing in front of the door, which causes false smell. Customers had problems reaching the coffee house and they complained about the smell from the horses. The plaintiff brings a case against the defendant as a private person for the damages causing to him under public nuisance. तो केस फैक्ट ये है कि जो प्लेंटिफ होता है उसकी कॉफी शॉप होती है, जो डिफेंडेंट होता है वो एक बिजनेस ऑक्शनर का कैरी कर रहा होता है, जिसके यहाँ पे डेली लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स चलता रहता है। तो वहां पे बिकॉज ऑफ द लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द गुड्स, वहां पे जो लाइट होती है जो कि कॉफी शॉप में आ रही होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे वो जो वैन्स एंड हॉर्सेस होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जो हॉर्सेस की जो कार्ट्स होती है जो गुड्स लेकर के आते हैं, तो वो वहां पे क्या करते हैं, फॉल्स स्मेल क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो कॉफी शॉप का ओनर है उसने ये भी बोला कि जो उसके कस्टमर्स हैं, पहली बात तो उनको हिंड्रेंस होता है उस कॉफी शॉप में पहुंचने तक में, और दूसरा ये फॉल्स स्मेल की वजह से वो वहां पे नहीं बैठ पाते। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेंटिफ एक केस लेकर के आता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट एज अ प्राइवेट पर्सन, क्योंकि ये जो फॉल्स स्मेल है ये पब्लिक को भी तो अफेक्ट कर रही है। तो ये तो केस हो गया पब्लिक न्यूसेंस का, बिकॉज द false smell caused by the horse is affecting the public at large, so this will come under the public nuisance, but plaintiff एक केस लेकर के आता है as a private person for damages caused to him under public nuisance, because तो कोर्ट क्या जजमेंट देता है, कोर्ट हेल्ड दैट this amounts to public nuisance as the plaintiff's business was getting affected. Moreover, the customers or passerby was also the affected party in this case. The court agreed that all the above points are fulfilled. Therefore, the plaintiff is entitled to get compensation for the damages suffered by him. तो कोर्ट ये बोलता है ये पब्लिक न्यूसेंस का केस है, बट दिस विल ऑल्सो affecting the plaintiff,
बिजनेस, क्योंकि उसकी जो कॉफी शॉप है वहाँ पे लाइट्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो इजीली एक्सेस नहीं कर पाते हैं उस कॉफी शॉप को, और क्योंकि ये जो फॉल्स स्मेल है वो पब्लिक को अफेक्ट कर रही है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस का केस हो गया और वहाँ के कस्टमर्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो कोर्ट इन सारे पॉइंट से एग्री करके ये बोलता है कि entitled टू गेट द कंपनसेशन फॉर द डैमेजेस सफर्ड बाय हिम। तो यहाँ पे क्या था, प्लेंटिफ जो था वो एक प्राइवेट पर्सन था और ये केस पब्लिक न्यूसेंस का था, बट क्योंकि प्लेंटिफ को वो अफेक्ट कर रहा था, ये तो डायरेक्ट रहा था, प्लेंटिफ वो डायरेक्ट था ना कि कॉन्सिक्वेंशियल था, ठीक है। और जो उसको इंजरी हो रही थी वो मोर देन दैट थी, जो कि पब्लिक एट लार्ज ने सफर करी थी, बिकॉज उसका पूरा बिजनेस इफेक्ट हो रहा था। There are certain exceptions for the tort of nuisance. Basically, there are three exceptions. First, abnormal sensitivity of plaintiff. This is basically based on the legal maxim de minimis non curate lex, which means law would not take action on small and trifling matters. This exception infers that if a person is oversensitive to a particular thing, but for others that particular thing is very normal, then it is not a nuisance. इसका मतलब ये है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स मैक्सिम ये बोलती है कि जो लॉ है वो ट्रिपलिंग और स्मॉल मैटर्स को नहीं कंसीडर करता है। ये एक्सेप्शन तब अप्लाई होगा कि जो पर्सन जो इफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द न्यूसेंस वो ओवर सेंसिटिव है। वो सेम एक्ट अगर नॉर्मल इंसान को वो सेम एक्ट अगर और लोगों को नॉर्मल लग रहा है बट उसी पर्सन को अफेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ हर ओवर सेंसिटिविटी, so this will not amount to nuisance. This exception will apply. Prescription. Second is prescription. If someone has letting someone do something for a long time and then all of a sudden that person cannot restrict them, this means if anyone is allowed to do certain act for a certain period without interruption, then he cannot suddenly claim for nuisance citing that particular action. अभी कोई पर्सन किसी पर्सन को कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर रहा है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब कोई पर्सन है जो उसको लाइक एक एग्जांपल लेते हैं कि पर्सन ए जो है वो अपने रूम में, एक रेंट का रूम है, वो पर्सन बी जो है वो वहां पे रेंट पे रहता है, तो उसको वो अलाउ कर रहे हैं कि वो जैमिंग कर सकता है उस जगह पे, बट अचानक से वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए उसको प्रिस्क्राइब कर चुका है, तो उस टाइम पीरियड तक के लिए वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। तो यही बोला गया, इफ एनीवन इज अलाउड टू डू अ सर्टेन एक्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, देन ही कैन नॉट सडनली क्लेम फॉर न्यूसेंस citing that particular action. Third, statutory authority, which means when a statute authorizes the act or the use of the land in a way, all the remedies, whether by action or indictment or charge, are taken away, provided that every necessary reasonable precaution has been taken. अब किसी स्टैट्यूट ने कोई चीज या किसी गवर्नमेंट ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एक्ट अलाउ करा है अंडर दिस, जिसकी वजह से किसी को न्यूसेंस हो रहा है या किसी पब्लिक को इफेक्ट हो रहा है, उस एक्ट से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है वहां पे, तो ये एक्सेप्शन अलाउ हो जाएगा ओनली एंड ओनली इफ दैट एवरी नेसेसरी रीजनेबल, जितने भी रीजनेबल प्रिकॉशंस थे वो लिए गए थे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या पर्टिकुलर पर्सन से जो कि वर्क कर रहा था अंडर द गाइडेंस और अंडर द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैट, ठीक है। So that's all for today. Thanks for watching. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And please be with me in the whole series of Law of Torts. I hope all the legalites out there are liking my videos, and I hope I'm explaining in easy to understand approach so that you guys can understand all these concepts. So yeah, that's all. Keep loving and keep supporting. And thanks for watching.